Assalamu alaikum, everyone, and this is probably the last lecture of our this semester, and there will be one more session, and that will be about revision. वो फिर revision का हम रख लेंगे किसी भी दिन, ठीक है? And this is the last one, and this is about analysis of sentences from semantics and grammar point of view. So you will be given in the exams. You will be given in the exams different uh, sentences, and you will be asked to analyze them from the point of view of semantics and grammar both. In the previous class, I told you about semantic roles. If you remember, उसमें आपको semantic roles बताए थे कि what semantic roles do you find or can you find in a sentence. And I've also shown you, if you remember, that how we analyze from the point of view of grammar and from the point of view of structure and semantic roles. Any problem regarding previous lectures? If you have any problem regarding the previous lectures, so you can ask me right now. Otherwise, I'll proceed to this one. And these all are important from examination point of view. ये सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है. याद रखिएगा, इस तरह की चीज़ें मैं दूंगा आपको. ये ना हो कि आप ये सोच बैठे कि सर ने यही देनी है. इस तरह की चीज़ें आपको मैं एग्जाम से दूंगा, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप इन योर माइंड these things. So analysis of sentences from the point of view semantics and grammar. Any question regarding this? No problem. Shall we proceed to the next? Yes, sir. Okay. All right. So let's start. In the exams, I can give you a question that may have 5 marks or maybe more than 5 marks. And I can ask you, I can give you sentences, and I can ask you to analyze them from the point of view of semantics and grammar. So you have to analyze them very carefully. So, for example, there is a sentence. I've written some sentences for that analysis purpose. You can see there is a sentence. The table is eating an apple. Can anyone analyze this sentence from the point of view of grammar and semantics? Can anyone analyze this per first sentence? The table is eating an apple. Yes, just make your efforts. Just try your best. Can anyone analyze this sentence? The first sentence, this one which I am highlighting right now in front of you. The table is eating an apple. Can anyone analyze this sentence from the point of view of grammar and semantics? So if we analyze it from the point of view of grammar, तो हम क्या कहेंगे? This sentence is absolutely correct from the point of view of
grammar, but it is absolutely incorrect from the point of view of semantics. From the point of view of grammar, it is absolutely correct, but from the point of view of semantics, it is absolutely incorrect. Why? क्यों? Because, yes, sir, because the table is not an agent. The table is table is not a living thing like human or any animal. Whereas eating an apple is a characteristics of a living body. ऐसी ना भाई? Are you getting me? किस तरह से मैं एनालाइज कर रहा हूँ? This sentence is absolutely means the table is eating an apple. It is absolutely correct from the point of view of grammar. Grammar के point of view से बिल्कुल दुरुस्त है. क्यों? Because it has a subject, verb and object. इसका अगर हम स्ट्रक्चर मालूम करना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. SVO इसका फॉर्मूला है. द फॉर्मूला ऑफ दिस सेंटेंस, द फॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस SVO. So from grammar point of view, it is from the point of view of grammar, it is absolutely correct because it has a subject, verb and object. तो ग्रामर के लिहाज से हमें यही चाहिए होता है, सब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट वर्ब बाद में आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. So it is correct, but it is absolutely incorrect from the point of view of semantics. Why? Because semantics deals with meaning. So because the table is not a living thing and like human or an animal, and that is why, and for this reason, it cannot perform the action of eating on an apple. Eating an apple is a characteristic of a living body. जिसको कोई living creature ही perform कर सकता है. ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना होगा? एनालाइज करना होगा. बात समझ में आ रही है? So I can give you different sentences and I can ask you to analyze them. So you can see the way I have analyzed. इस तरह से आपने करना होगा. दोबारा देखिएगा, द टेबल इज ईटिंग एन एप्पल. तो इसको एनालाइज कैसे किया कि दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ग्रामर बिकॉज इट हैज अ सब्जेक्ट, बट it has a subject, verb and object, and its formula or formation is SVO, but it does not, it is not, but it is absolutely incorrect from the point of view of semantics because the table is not a living thing like human or any animal, and for this reason it cannot perform the action of eating an apple. So eating an apple is a characteristic of a living body. So semantically ये जुमला गलत है, जबकि grammatically ये जुमला दुरुस्त है. इसका conclusion क्या होगा कि semantically this sentence is incorrect, wrong, and grammatically this sentence is correct. जिससे अंदाजा हुआ कि ग्रामर को बहुत सी चीजें ग्रामेटिकली दुरुस्त हो सकती हैं, बट सेमेंटिकली वो गलत हो सकती हैं. Any question regarding the analysis of the first sentence? Yes, किसी को कोई पहले सवाल, पहले के हवाले से कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है. यस.
No voice is coming, no response is coming. No, sir. तो ये याद रखिएगा, ये अभी आपको बता रहा हूँ, बाद में अगर आप पूछेंगे तो आपको मैं हो सकता है इस तरह से ना बता सकूं. That is why you should ask me right now if you have any problem. These are the things which you will be given in the exams. अच्छा, Lucy is opening the fan because the room is getting very hot. Now, what do you say about this sentence? इसके बारे में क्या एनालिसिस आपकी होंगी? Yes. या गिव योर एनालिसिस. थोड़ा सोचिए, थोड़ी देर के लिए, एक आध मिनट के लिए सोचिए एंड देन टेल मी अबाउट योर एनालिसिस. Yes, think for a while and then you can tell me about your analysis. No response is coming. Is this difficult to understand? क्या इसमें कोई मुश्किल है भाई? Is there any difficulty to understand it? If you are present, so please give me some response. Yes, sir. Yeah, just analyze the second one. Lucy is opening the fan because the room is getting very hot. Analyze this sentence from the point of view of grammar and semantics. Sir, according to the grammar point of view, Lucy is subject, and according to semantics, Lucy is agent. Agent. But here I'm asking you, what do you say? Okay, आपने एनालाइज किया, अच्छी, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा मजीद क्या जुमला दुरुस्त है या नहीं है, ये भी बताना होगा आपने, और ये भी बताएं कि फिर इसमें क्या लूसी क्या है. सो दिस सेंटेंस, yes, from the point of view of grammar, it is correct or incorrect? No, sir, grammatically it is not correct, It is not correct. Why? but semantically it is correct. Why? कैसे? Because for fan we can use turn on. Yeah. For fan we can use turn In on. grammar Yeah. point of view, we Uh, can't use. So this is a mistake of not grammar. This is a mistake of semantics. ये कॉलोकेशन की गलती है. कॉलोकेशन सेमेंटिक्स में आता है. ठीक है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला देख लें, फॉर्मेशन, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद कंजंक्शन लग रहा है, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है. ठीक है, तो ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल सही है. दोबारा देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ. फ्रॉम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन सी हेयर. Sir, आवाज नहीं आ रही आपकी. या फ्रॉम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज करेक्ट, बिकॉज लूसी इज सब्जेक्ट, और फिर ये आपके पास ये इज ओपनिंग जो है वर्ब है, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है द फैन. फिर आपके पास ये कनेक्टर आ गया, कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन आपके पास आ गया. ठीक है, और उसके बाद फिर ये आपके पास आ गया सब्जेक्ट, फिर ये आपके पास आ गया वर्ब, फिर ये आपके पास आ गया कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ग्रामर के रियाज से तो ये आपके पास बिल्कुल सही है, जिसके तमाम पार्ट्स मौजूद हैं आपके पास. ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है सिमेंटिकली. Semantically problem is coming. What is the problem? Collocation problem. Why? Because we do not open the fan. What do? We turn on the fan. What do we Turn do? on the. Yeah. So turn on करते हैं. Open का मतलब कुछ और हो जाएगा. तो आगे मैंने कॉन्टेक्स्ट भी दिया है कि क्योंकि कमरे में गर्मी हो रही है, तो कमरे में गर्मी हो रही है से मुराद है कि पंखा स्विच ऑन कर दो. स्विच ऑन द फैन.
this is the right word, switch on. So Lucy is opening the fan. It is Sir, grammatically turn on be right है. स्विच ऑन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, स्विच ऑन, टर्न को आप छोड़ दें. तो लूसी इज ओपनिंग द फैन because the room is getting very hot. It is grammatically absolutely correct. There is no mistake grammatically, but semantically it is incorrect. Why? Because open does not collocate with the fan. Open does not collocate with the fan. अगर आपको गालिबन याद हो, मैंने कॉलोकेशन पढ़ाया था, शुरू में पढ़ाया था, कॉलोकेशन, कॉनोटेशन, याद है? एसोसिएटेड मीनिंग्स इसमें आपको बताएं दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग. तो यहाँ पे ग्रामेटिकली, यहाँ पे कॉलोकेशन कॉलोकेट नहीं कर रहा ये. तो हियर दैट इज व्हाई इट इज सिमेंटिकली रॉन्ग एंड ग्रामेटिकली करेक्ट. फॉर this purpose we use switch on the fan. For any electrical item we use switch on, and for closing we use switch off. इस तरह से आपने इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना होगा. ठीक है, जिस तरह मैंने ऊपर एक लिखा आपके सामने यहाँ पर, तो इसको भी आपने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना होगा. लिखने के बाद आपने इसको क्या करना है, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू राइट योर एनालिसिस. एनी क्वेश्चन? या कोई सवाल अगर किसी ने पूछना हो इस हवाले से? हाँ सर. यस, No, sir. ओके. इसी तरह से आपके पास है I am eating the tablet with water. What is it? What is it here? I am eating the tablet with water. So can we use eat with for tablet? No sir. So what do we use for tablet? Yes, this sentence is again, this sentence is correct from the point of view of Grammar. but grammar, because Semantically, it has It is wrong. because it has subject, verb and object, but semantically it is incorrect because eat does not collocate with the tablet. Eat does not collocate with tablet. For tablet, what do we use? For tablet, we use take. ठीक है, तो इस तरह से आपने बताना होगा कि ये इस वजह से गलत है या ये इस वजह से इनकरेक्ट है, उसकी वजह भी आपने बतानी होगी. खाली आप ये बोल देंगे गलत है तो उससे काम नहीं चलेगा. आपने एनालाइज जब करना होगा तो यू हैव टू टेल द होल सिचुएशन, राइट? सो जॉन हैज अ हीट ऑफ हार्ट ऑफ स्टोन. व्हाट इज इट? इसके बारे में बताइएगा. एनालाइज दिस सेंटेंस. हरी अब, कम ऑन, यस हरी अब. Analyze this particular sentence. John has a heart of stone. सर ये भी सिमेंटिकली करेक्ट है. सिमेंटिकली करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है. Grammatically correct क्यों नहीं? जल्दी बताएं. Why is it not correct from semantically? According to you, you said that semantically it's not correct. So why? सर सिमेंटिकली करेक्ट नहीं है. क्यों? वजह बताएं. Reason why? सर क्योंकि किस देख जो दिल है वो हार्ट जो है वो स्टोन का नहीं हो सकता. सिमेंटिकली सेंस नहीं बन रहा. अच्छा, और बेटा ये इडियम है. इडियम जो है वो अपनी मीनिंग कन्वे करते हैं. ठीक है, so from idiomatic point of view it is correct, right? Heart of stone means what? तो सर सिमेंटिक में तो इडियम्स देखें, इडियम्स आपने पढ़ा होगा ना, मैंने आपको गालिबन पढ़ाया था इडियम. याद है कुछ? इडियम फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग्स आपको मैंने बताई थी. यस. तो उसको बताने का बुनियादी मकसद क्या था कि दे ऑल कन्वे मीनिंग्स. if there is any idiom exist,
then of course we have to use it and we have to see its meaning. We cannot derive their meanings ourselves. We have to check their meaning. ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो जाहिर है उसका जो मीनिंग है वो अब यहाँ पे जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वो ये है कि of course grammatically it is correct and semantically it is also correct, and the meaning that it is conveying is that a person is very strict. क्या ये बात कर रहे हैं कि this sentence is grammatical is correct from the point of view of grammar as well as semantics. There is an idiom has been used in this sentence which means, what does it means? Which means John is not a kind hearted person. He is very strict. राइट ये इसका एक मतलब है जो आपने बताना होगा. जॉन इज नॉट अ काइंड हार्टेड पर्सन, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट in these matters, right? So this is an idiom which is giving us this sense. It does not mean that he has a stone heart which is made of stone. It means he is a very strict person and cruel person, I would say here. He is very strict or cruel. ठीक है, ये इसका मतलब है. तो सिमेंटिकली हमें पता चला कि ईडियम का इस्तेमाल किया गया और ईडियम्स का मतलब ये है. ग्रामेटिकली तो ठीक है, बाज़ का जुमले ग्रामेटिकली दुरुस्त नहीं होते लेकिन सिमेंटिकली मीनिंग पहुंचा रहे होते हैं. अब मिसाल के तौर पर आई एम गो टू कॉलेज, ठीक है, ये एक जुमला आपके पास. क्या ये इस जुमले में क्या बुराई है? कोई बुराई है इस जुमले में? इस जुमले में कोई बुराई है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस सेंटेंस और इज इट करेक्ट? सर करेक्ट नहीं है क्योंकि ये एम लगा है तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है और उसके आगे गो के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा. Yeah, I am go to college. So this sentence is grammatically incorrect. Grammatically incorrect. But if you check its meaning, so it is giving us a meaning. क्या meaning दे रहा है? भाई देखे ना, हम नॉर्मल लाइफ में बहुत सी जुमले ग्रामेटिकली गलत बोलते हैं लेकिन इसकी मीनिंग समझ में आ जाती है, आती कि नहीं? तो इसका मतलब है सिमेंटिकली वो सही जा रहा है लेकिन ग्रामेटिकली वो प्रॉब्लम कर रहा है. ठीक है, तो ग्रामेटिकली प्रॉब्लम. अब जैसे आई एम गो टू कॉलेज, जिसकी अंग्रेजी खराब है बेचारा ये भी बोलता है आई एम गो टू कॉलेज. ठीक है, बॉयज आर प्ले वेरी वेल, इस तरह के जुमले. तो अंग्रेज भी उसे समझ रहा है लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत जा रहा है. तो जब हम किसी भी जबान को बोलना चाहे, इफ यू वांट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, सो वी शुड बी करेक्ट ग्रामेटिकली एज वेल एज सिमेंटिकली बोथ. देन वी विल बी एबल टू कन्वे आवर मैसेज इन अ प्रॉपर वे, इन एन इफेक्टिव वे. जो इफेक्टिवनेस होती है वो हमेशा उस वक्त आती है जब ग्रामेटिकली भी आप करेक्ट हो, सिमेंटिकली भी आप करेक्ट हो. लेकिन अगर आप एक सूरत में करेक्ट होंगे ग्रामेटिकली या सिमेंटिकली तो उसको मैसेज तो चला जाएगा लेकिन वो इफेक्टिवली नहीं जाएगा. जैसे आपने जो लोगों को अंग्रेजी बोलते हुए सुना होगा तो बहुत सारी गलतियां करते हैं. ठीक है, तो क्या है कि वो ग्रामेटिकली जो है वो, अब जिससे मिसाल ये एक आम सी मिस्टेक है सेंस और फॉर्म में. आई हैव बीन working here since 4 years. ठीक है, ये एक जुमला है. सुना होगा आपने भी, बहुत से लोग सेंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये आपके सामने एक जुमला मैंने रखा है कि आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 4 months. तो क्या इसमें आपको कोई मसला नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, मसला है सर. क्या आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 4 years नहीं होगा, फिर क्या होगा? ये होगा आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 years. ओके, एक कॉल आई है, मैं उसको थोड़ा रिसीव कर लूँ, आप जब तक इस पर थोड़ा गौर करें.
Okay, so I've been working here since 4 years. So here the word since should not be used. ठीक है, यहाँ पे क्या इस्तेमाल होना चाहिए? In place of since फोर होगा सर. 4 होगा. लेकिन बहुत से लोग इसे गलत पढ़ते हैं. इवन मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स को ये बोलते हुए सुना है. And I've heard many good speakers of English making this mistake. लेकिन जुमला मीनिंग समझ में आ जाती है. Why? Because जो है आपको सिमेंटिकली समझ में आ जाता है. बट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर दैट सिंस इज नॉट यूज विद दिस 4 years. So sometimes it happens that sentence grammatically wrong, but it conveys its meaning. That is why we understand it. So I am go to college. Here it is grammatical. जब आपको अगर इस तरह का जुमला मिलेगा तो आपने क्या लिखना होगा कि this sentence is grammatically wrong. Why? Because uh, either it is there should be ing form, or go should be there should be m should be removed from here. So this is how it will become grammatically correct, and semantically it's giving meaning. और ये मीनिंग क्या दे रहा है कि वो उसकी रेगुलर रूटीन की बात हो रही है कि आई एम गो टू कॉलेज मीन्स आई गो टू कॉलेज. तो उससे पता चल रहा है कि वो बता रहा है कि वो कॉलेज रोज़ाना जाता है या कॉलेज जाता है, ये उसकी एक्टिविटी है. Is this clear? So sometimes you'll find grammatic things wrong from the point of view of grammar, and sometimes you'll find things wrong from the point of view of semantics. So you have to analyze them very carefully. Now you can see there is another sentence. She eats like a bird. अब ये हो सकता है आप लोगों को, I don't know whether you know about this one or not. Can anyone tell me about this? सर मैं भी यहाँ ये बोला जा रहा है वो बहुत मतलब जो है ना डांटती है या सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करती है या कि बहुत बोलती है, इस तरह की कोई मुझे Actually, she eats like a bird. It means that uh, like a bird. Actually, मे बी it's an idiom. ये एक idiom है, which means she मे eats. बी शी टॉक्स टू मच. No. It's not related to talking too much. इसका ताल्लुक talking too much से नहीं है. इसका ताल्लुक है कि वो खाना बहुत कम खाती है. देखिए ना, ईट लगा हुआ है साथ में. तो बर्ड्स होते हैं, परिंदे जो होते हैं बहुत कम खाते हैं. तो ये एक idiom है, which means she eats very little. बहुत कम खाना खाती है. ठीक है, जैसे हम उसका opposite idiom क्या है, he eats like a horse. eat like a horse means बहुत ज़्यादा खाता है वो. So she eats like a bird means वो बहुत कम खाना खाती है. So semantically and grammatically this sentence is correct. This sentence contains an idiom which means to eat very little, or to eat in a very little amount of, to eat a very little amount of food, right? तो जहाँ पे कहीं इडियम आएगा तो आपने बाकायदा उस इडियम के बताना है कि भाई ये इडियम है, इसका मतलब ये है, इसलिए आप इसके ज़ारी मीनिंग को मत जाएगा. डोंट टेक इट्स apparent meaning, take its real meaning. If it is idiom, then you should know about the idiom. If it is a phrasal verb, then you should know about the meaning of that phrasal verbs. His brother is 6 foot long. ये तो मेरा ख्याल दुरुस्त जुमला है. इसको कैसे एनालाइज करेंगे? Yes, how will you analyze this sentence? So here again we have the problem of सर collocation. मे बी his brother is 6 foot long. We should use that tall Tall, yeah, rather very than foot. long. Yeah, very good. So there should be tall, not long, because for people we use tall, and for root and roads and all such thing we use long, right? Long. Yeah. So here what you say grammatically it is absolutely correct, but semantically there is a problem. There is a problem of collocation. बताना भी आपने collocation की problem है, connotation की problem क्या है? There is a problem of collocation. Means for human beings we use tall, not long. Yes, sir. इस तरह से आपने एनालाइज कर देना है. ठीक है, योर ब्रदर इज वेरी फेट, ये एक जुमला है, तो इसको एनालाइज कैसे करेंगे? सिमेंटिकली देखें, ग्रामेटिकली एंड सिमेंटिकली तो हम हर जुमले को एनालाइज कर सकते हैं. उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट बताएंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट बता देंगे, उसका बताएंगे वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. अब ये जुमला जो है ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और सिमेंटिकली भी करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इट इज गिविंग अ लिटल व्हाट शुड आई से हियर,
this negative meaning, right? When you use fat for somebody else, so it means that you are insulting that person. That person will mind you, वो बुरा मनाएगा आपका. ठीक है, अगर आप किसी के कहेंगे कि you are getting fat, so he or she will mind you, or he or she will take it as an insult. लेकिन इसी जुमले को अगर आप यूँ कह देंगे, your brother is gaining weight or is gaining much weight, so here you are using polite language. So यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो impoliteness की आ रही है. किसकी आ रही है? रूडनेस की आ रही है यहाँ पर. So your brother is very fat, so fat यहाँ पे रूड वर्ड है जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए. Is this clear? So where we have to use words which are polite words, where we have to use words which are impolite, where we should use the use of words of impolite words, it's also very important. मैंने गालिबन आप लोगों को बताया था रजिस्टर में, याद है रजिस्टर के हवाले से कि फॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड्स, पर वहाँ पे बताया था टेबू क्या होते हैं और क्या कहते हैं पोलाइट वर्ड्स क्या, पोलाइटनेस क्या होती है, इम्पोलाइटनेस क्या होती है. डू यू रिमेंबर? Yes, sir. Yeah, so please take care of these things. He ran away from his home after stealing 15 million rupees. He ran away from his home after stealing 15 million rupees. इस जुमले को भी आप एनालाइज करेंगे तो कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स ये भी जुमला जो है ग्रामेटिकली और सिमेंटिकली वगैरह भी दुरुस्त है. इस जुमले से आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही है? प्री सपोजिशन वगैरह का भी आप ध्यान में रखिएगा. तो इस जुमले को भी आप एनालाइज कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस जुमले से आपको एक चीज़ सामने नज़र आ रही है कि यार 15 मिलियन रुपीज़ यानी कि 1.5 करोड़ रुपए कोई लेके घर से भाग रहा है, तो वो कितना मालदार बंदा होगा. जब आप एक 15 करोड़ के 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ रुपए लेके अगर एक बंदा घर से भाग रहा है तो उसके घर में हो सकता है वो 4-5 करोड़ रुपए हो, या वो बहुत पैसे वाला बंदा हो. तो इससे एक चीज़ सामने आ रही है कि जो बंदा भागा है वो बहुत अमीर शख्स है. ठीक है, तो प्री सपोजिशन के एलिमेंट्स को भी आपने देखना होगा, इंटेलमेंट को भी देखना होगा. तो एनालाइज जब आप करेंगे तो आपने इन चीज़ों को देखना होगा ग्रामर से, सेमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें आपको मिल रही है. सेमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं आपके पास कॉलोकेशन का आंसर एलिमेंट होगा, समटाइम यू विल हैव प्री सपोजिशन, समटाइम एंटेलमेंट, समटाइम you will have the things related to quantitative meanings. Okay, so you have to keep all these things in your mind. So this is very interesting and very you can say amusing type of analysis which you have to do. लेकिन इसके लिए शर्त ये कि आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए. एक जुमला आपके पास है, कैन आई यूज योर कार, और जवाब है नो यू कांट. इस जुमले से क्या समझ आ रहा है? हरी अप हरी अप. टाइम बहुत कम है हमारे पास, सिर्फ 5 मिनट है. वी हैव ओनली 5 मिनट्स. कैन आई यूज योर कार, जवाब में कहा नो यू कांट. कोई आपसे कुछ कहता है कि कैन आई यूज योर पेन, तो आप उसको जवाब देंगे नो यू कांट. तो ये क्या कैसा जवाब होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिप्लाई? ऑफ कोर्स इट विल बी अ रूड रिप्लाई. तो आपने उसका जवाब कैसे देना? अगर आप पोलाइट, इफ यू रिप्लाई इन अ पोलाइट वे, यू विल से आप क्या कहेंगे? सॉरी, आई एम सॉरी लाइक दिस. अगर आप डायरेक्ट उसको जवाब देंगे नो यू कांट, सो यू आर जस्ट गिविंग अ रूड आंसर. सो वन शुड अवॉइड यूजिंग डायरेक्ट आंसर. रूड आंसर से बचें, ठीक है, एंड यूज पोलाइट आंसर. कोई आपसे कहते हैं कैन आई यूज योर पेन, सो यू कैन से आई एम सॉरी आई कांट. इट मीन्स दैट आई एम सॉरी यू कांट. ठीक है. और इसी तरह डिड यू रीड शेक्सपियर यस्टरडे, तो ये क्या शो कर रहा है? डिड यू रीड शेक्सपियर यस्टरडे, व्हाट डज इट शो? मेटोनमी. इट शोज मेटोनमी. आपने पढ़ा है सिमेंटिक में ट्रम्प पढ़ा है मेटोनमी. डू यू रिमेंबर? आई लव शेक्सपियर. Yes, sir. या तो यहाँ पे मेटोनमी का इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, ग्रामेटिकली इट इज अ क्वेश्चन एंड सिमेंटिकली यू विल फाइंड हियर द यूज ऑफ मेटोनमी. कैन आई हेल्प यू? यस यू कैन. यस यू कैन. सो हियर इट इज ऑल्सो शोइंग रूडनेस. तो अगर कोई आपसे कहता है कैन आई हेल्प यू, आपको अपनी हेल्प ऑफर कर रहा है, तो आपने जवाब में क्या कहना है? यस प्लीज. और मना करना होगा नो थैंक्स. तो अगर आप डायरेक्ट उसको जवाब दे देंगे कैन आई हेल्प यू, यस यू कैन, सो इट मींस दैट यू आर गिविंग अ रूड रिप्लाई. I've been learning English for 3 months, ये एक जुमला है. ठीक है, तो इस जुमले को अगर आप एनालाइज करेंगे मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज, तो आप देखेंगे इस जुमले के अंदर
पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। ये पास्ट की मीनिंग भी दे रहा है, प्रेजेंट मीनिंग भी दे रहा है, फ्यूचर मीनिंग भी दे रहा है। अगर आप देखेंगे इसे सिमेंटिकली देखेंगे तो ये आपको तीनों मीनिंग्स दे रहा है। कैसे? फॉर एग्जांपल, सर मैं टेल यू यस, सर, इसमें मतलब ये है कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। इसका मतलब इसने काम 3 मंथ पहले शुरू किया था, ये पास्ट में या यस, और वो काम अभी तक भी जारी है, वो प्रेजेंट में आया और यस, ये काम मजीद अगर जारी होगा तो फ्यूचर में चला जाएगा। यस। जारी नहीं, मजीद जारी है ये। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेजेंट इज ओनली अ मोमेंट and past is unlimited, future is unlimited. So I've been learning English for 3 months. It means I started learning English 3 months ago and I've passed 3 months. I'm still learning English and I may spend some more time in learning English. So it means it is giving us past, present and future meaning all. ऐसे ही ना भाई, ऐसे ही ना, पास्ट की मीनिंग भी आ रही है, प्रेजेंट में भी आ रही है और हमें पता है ये एक्शन अभी कंटिन्यू है, तो ये फ्यूचर मीनिंग भी दे रहा है। कब तक रहेगा पता नहीं। तो ये एक वाइट आपके पास एस्पेक्ट है जो, और टेंस है जो आपको तीनों मीनिंग्स देता है। अंडरस्टैंड करना होगा आपने। वैसे तो हम इसकी एक ही मीनिंग लेते हैं, बट सिमेंटिकली यू हैव टू सी दैट इट इज गिविंग अस हिडन मीनिंग्स भी, आप इनडायरेक्ट मीनिंग्स भी आपने देखनी होती है सिमेंटिकली। इज दिस क्लियर? Yes, we are running out of time. Only 1 minute 30 seconds are left. I've told you this thing 100 times. What does it this sentence contain? इस sentence में क्या चीज आपको नजर आ रही है? नुमाया? Yes, hurry up. Hyperbole, sir. Hyperbole, very good. So this is again grammatically and semantically अगर कोई गलती हो तो बताएगा, otherwise it is correct. But this sentence contains one, figure of speech, and that is called hyperbole. And why do we use hyperbole? When we want to emphasize what we are saying. When you want to make it emphatic, then we use hyperbole. So 100 times doesn't mean, and we never take its actual meaning. We always take its, we don't take its actual meaning. So 100 times means many times, and in order to emphasize that particular action, the speaker has used this hyperbole. इस तरह से कैन यू कैन एज अ कैनर कैन कैन ये जुमला जो है ग्रामेटिकली दुरुस्त है, लेकिन सेमेंटिकली ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी कोई मीनिंग ही नहीं आ रही। लेकिन साउंड ऑन साउंड, क्या कहेंगे, ओनोमोटोपी ऐसा कुछ इस तरह है, वर्ड प्ले के तौर पे इसको इस्तेमाल कर। वर्ड प्ले भी आप लोगों को पढ़ाया, याद है ना? डू यू रिमेंबर वर्ड प्ले? Yes, sir. या वर्ड प्ले के तौर पे ये आपके पास है कि इट इज मैचिंग साउंड एंड इट कैन बी अ वेरी गुड टंग ट्विस्टर। ओके, so with for playing with words, we can use all these techniques. With this I end the session, and this is how our course has been finished. Now we will have one class in which inshallah